Hello, future officers. Welcome to Decoded once again. I hope all of you are doing very well and your studies are going perfectly in line with the UPSC Civil Services 2020 paper, which is going to be conducted on 25th of May 2025. Okay, so in this today's video, we are going to discuss the solutions to UPSC CSAT PYQ 2021 paper, and the topics would be profit loss, percentage, average, mixture, ratio, proportion, and unitary method. In this 21 paper, approximately 7 questions were asked from this combined topic. Okay, 7 questions. On an average, if you'll calculate every year at least 5 to 6 questions. Okay, if you take lower side 5, then 12.5 marks of topics are asked from profit loss, average, mixture, proportion, ratio, and unitary method. And it is a very easy topic. If you are not well thorough with this, then in this channel only there are separate videos which are explaining these topics with examples, and the type of examples which have been taken are of the type which UPSC asked. Okay, if you are not thorough with those, you can go and check them out there. Otherwise, if you are thorough, so let's solve these questions. Okay, so we are having 2021 paper set A. 7 questions were asked. I have already told you. So the first question would be your question number 9. These are very easy questions are asked, not that difficult are asked. So instead of running after number system, even if you prepare this one, what is this? Profit loss, percentage, average, mixture, you're still getting 5 questions. Okay. Number system, even an odd concept and prime and composite and those unit digit, number of zeros you can easily do. But other questions might be a bit difficult. But these average, profit loss, ratio, proportion are very easy. And 5 questions are there. Okay, you will see how easy they are. Okay, now let's start. In a class of 60 students, in the class 60% students are from India and 50% students are girl. ठीक है. If 30% of the Indian students are girl, then what percentage of foreign students are boys? Okay. ये कह रहे हैं, अब अगर हमने पहले से देखा हुआ है परसेंटेज को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमने हमेशा ध्यान रखा है कि किसी भी चीज़ को जो कंप्लीट है तो उसको 100% ले सकते हैं. जैसे कंप्लीट स्टूडेंट जो इस क्लास में थे 100% थे, समझ लीजिए. उसमें 60% इंडिया से. ठीक है, तो फॉरेन स्टूडेंट कितने हो गए? 40%. अब आगे चलते हैं. एंड 50% स्टूडेंट्स आर गर्ल. अब इसी में से 50% गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स कितनी होगी? 50 होगी. अब आगे चलो. इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल, अब इंडियन स्टूडेंट्स में से भी 30% गर्ल्स हैं. कितनी? 30%. तो इंडियन स्टूडेंट कितने? 60%. तो 60 का 30% लोगे आप, कितना आएगा? 18. सो इंडियन गर्ल्स हैं, इंडियन गर्ल्स 18 हैं, तो टोटल गर्ल्स है 50. माइनस कर दो इसमें से इंडियन गर्ल्स, तो आपके पास आ गया कितना? 32 गर्ल्स, जो कि फॉरेन गर्ल्स हो गई अब आपके पास. ठीक है. और टोटल नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स कितने हैं? 40 हैं. टोटल नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट 40 हैं. अब आगे देखते हैं. तो व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज? अब फॉरेन गर्ल्स तो कितनी है आपके पास? 32. और फॉरेन, टोटल फॉरेन है 40, तो इसमें 32 माइनस कर दोगे तो फॉरेन बॉयज आ गए आपके पास. अब ये कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज. अब फॉरेन स्टूडेंट में से ही बॉयज बताने हैं, तो फॉरेन स्टूडेंट्स कितने हैं? 40. उसमें से फॉरेन बॉयज 8. अब परसेंटेज निकालना है, इंटू 40 कर दो. 0 कैंसिल आउट. This is your 2 times, this is your 20%. The answer is D. Okay, very easy question. Just take 10 seconds to solve. Now let's move on to another question. That is your question number 30. Question number 30. It is also a very easy question. Okay, let's see. A student appeared in 6 papers. The maximum marks are same for each paper. Okay. His marks in these papers are in the proportion 5, 6, 7, 8, 9, 10. Overall, he scored 60%. In how many number of papers did he score less than 60% marks? ठीक है. हमें पता नहीं है मैक्सिमम कितने मार्क्स का पेपर है, तो मैक्सिमम मार्क्स हर पेपर के 100 लेते हैं. जब भी हमें कुछ नहीं पता है तो उसको 100 मान लो, क्योंकि 100 एक कंप्लीट चीज़ है कि 100 है. अब 6 पेपर्स हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 600 हो गए आपके. ठीक है. इंटू 6 करोगे ना अगर आप, तो 600 मार्क्स हो गए टोटल. टोटल मार्क्स 600 हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास कितने पेपर्स हैं? 6 पेपर्स हैं, तो टोटल मार्क्स 600 हो गए.
अब फर्दर कहता है कि ओवरऑल कितना स्कोर किया, 60%, तो 600 का 60% ले लेते हैं, तो आपका टोटल स्कोर आ गया 360 मार्क्स। अब ये जो टोटल स्कोर इसका आ रहा है, इसमें जो इसके मार्क्स हैं वो किससे प्रोपोर्शनल है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कोई ना कोई एक बीच में कॉमन रेशो होगा जो इन सब में से डिवाइड हुआ होगा, तभी तो ये प्रोपोर्शन में आए ना, ठीक है। तो उस कॉमन रेशो को x मान लेते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 5x + 6x, जो x से मल्टीप्लाई करते जाओगे अगर इनको 5 को 6 को 7 को 8 को 9 को, और वो कॉमन है x, तो हर सब्जेक्ट के मार्क्स आते रहेंगे जो भी 6 सब्जेक्ट हैं। तो 5 × x किसी एक सब्जेक्ट का, 6 × x किसी एक सब्जेक्ट का, टोटल मार्क्स कितने हैं, 360, क्योंकि टोटल मार्क्स तो ओवरऑल 600 थे, उस 600 में से उसके कितने आए, 60%, तो 600 का 60% 360, ठीक है। तो 7x + 8x + 9x + 10x इज इक्वल टू आपका 360 आ जाता है, क्योंकि उसके 60% टोटल मार्क्स में, तो 360 हो गए। और एक कॉमन फैक्टर होगा जो इन सब में से डिवाइड हुआ होगा, तभी तो ये रेशो आया। उस कॉमन फैक्टर को अगर इन एक नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो सारे मार्क्स आते जाएंगे आपके पास, तो इनको ऐड कर दो आप, ये आपका ऐड आ जाए 11 + 7 18, 18 + 8 इज योर 36 + 9 सॉरी 26, 36 and 10 तो 35 and then your 10 is 45, तो 45x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 360। ओके, सो इफ यू ट्राई टू सॉल्व देन इट वुड बी योर 8 times, so x इज इक्वल टू 8। तो मार्क्स देखते जाओ, तो आपका एक आ जाएगा 5 × 8, आपका आ जाएगा 5 × 8 जो आपकी आपका आ जाएगा 40, फिर 6 8 = 48, 7 8 = 56, 8 8 = 64, 9 8 = 72 एंड 8 10 = 80। तो ये पूछ रहा है कि कितने मार्क्स कितने पेपर में 60% से कम है, तो 60% से कम किस में है, आपके 40 हैं, 48 और 56 हैं, बाकी 60 से बड़े 3 में, तो इसका आंसर आ गया आपके पास B 3। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। 37 is an applied question of percentage. Okay, there are two classes A and B having 25 and 30 students respectively. ठीक है, क्लास A के पास कितने स्टूडेंट है, आपके पास 25 है और इसके पास है 30। In class A the highest score is 21 and lowest score is 17. In the class B the highest score is 30 and the lowest is 22. Four students are shifted from class A to B. ओके, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। आपने एक एवरेज में कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि एवरेज जो है हमेशा बड़ी होगी सबसे छोटे नंबर से। क्लास 1 की बात करते हैं, क्लास A की बात करोगे तो एवरेज जो है सबसे छोटी वैल्यू से बड़ी होगी और सबसे बड़ी वैल्यू से छोटी होगी। क्लास A के लिए सबसे बड़ी वैल्यू है 17, सबसे छोटी है 17, सबसे बड़ी है 21। क्लास B की बात करो, क्लास B के लिए आपके पास सबसे छोटी वैल्यू है 22 अगर जो क्लास B की एवरेज लोगे तो आप, और सबसे बड़ी वैल्यू है 30। अब देखते हैं, अब ये कह रहा है 4 स्टूडेंट A से B में गए, ठीक है, और एवरेज टोटल क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है आपके पास सारी क्वांटिटीज़ का सम ऑफ क्वांटिटीज़, जो कि सम ऑफ जो मार्क्स होंगे अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास B विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब देखो जो क्लास A का सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना है, 21 है, और क्लास B का सबसे लोएस्ट स्कोर है 22। जब क्लास A के बच्चे आप क्लास B में भेजोगे तो जो उनका सम था सबका वो कम हो जाएगा ना, और ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो तो ज़्यादा हो रहे हैं, पर जो मार्क्स हैं ओवरऑल वो कम आके ऐड हो रहे हैं ना, तो जो उनका रेंज था वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली देखा जाए तो एवरेज स्कोर ऑफ क्लास B विल डेफिनेटली डिक्रीज, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब अगला है एवरेज स्कोर ऑफ क्लास A विल डेफिनेटली इंक्रीज। ये हम कह नहीं सकते कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन से बच्चे जो क्लास A के हैं वो B में गए हैं, ये हमें पता नहीं है, तो ये नहीं होगा आपका, तो इसका आंसर आ जाएगा A आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, जो कि है क्वेश्चन नंबर आपका 54, क्वेश्चन नंबर 54 पे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको नंबर सिस्टम थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो उसमें से इवन ऑड प्राइम कंपोजिट वाले कंसेप्ट्स को पढ़ लें,
या इस चैनल पे भी वीडियोस अवेलेबल हैं। इस चैनल पे नंबर सिस्टम भी बहुत अच्छे से समझाया गया, अगर आप करके देखोगे तो आपको वो डिफरेंस फील होगा कहीं और से करा होगा तो। अगर आपने सब बहुत अच्छा कराते हैं, पर मैंने अपने तरीके से कराया है जिसमें कि पहले कंसेप्ट है, फिर इलस्ट्रेशन वैसे ही हैं जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपको नंबर सिस्टम में दिक्कत आती है तो एवरेज परसेंटेज इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन करना बहुत आसान है उसके कंपैरिजन में, और जल्दी भी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 54, P scored 40 marks more than Q in an examination. If Q scored 10% less marks than P, then how much did Q score? ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता Q के कितने मार्क्स हैं, तो मैं Q के मार्क्स ले लेता हूँ आपके X। अब ये कहता है P ने स्कोर करे 40 मार्क्स मोर देन Q, तो P के हो गए X प्लस 40, ठीक है, इतना हो गया। If Q scored 10% less marks than P, then how much did Q score? अब ये कह रहा है कि जितने P के नंबर से उससे 10% कम है Q के, तो मतलब ये जो X प्लस 4 है इसका 10% ले लो, X प्लस 40 जो है इसका 10% ले लो और उसको X प्लस 40 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब कि जो P के मार्क्स थे उसको सब्ट्रैक्ट कर दो आप 10% ऑफ P का ही लेके, तो आपके Q के मार्क्स आ जाएंगे, ये कह रहा है ये। तो इसका मतलब ये है कि X प्लस 40 माइनस आपका 10% ऑफ X प्लस 40 इज इक्वल टू आपका Q के मार्क्स यानी X। तो आप सो कर लो X प्लस 40, ठीक है, और ये आपका माइनस ये 10% है, तो 10% को आप लिख सकते हो ऐसे। तो अगर किसी के भी नीचे 10 है तो उसका डेसिमल 0.1 ले सकते हैं, तो यहाँ 0.1 टाइम्स X प्लस 40 इज इक्वल टू X आ जाएगा। अब ये 1 है, ये 0.1 है, तो X प्लस 40 में से X प्लस माइनस करोगे 0.1 X प्लस 40 तो आएगा 0.9 टाइम्स X प्लस 40, इजंट इट। तो आप इसको लिख सकते हो 0.9x प्लस 36, 4 इंटू 9 36। देखो अगर ऐसे था 40 इंटू 0.9 करो तो यहाँ से ये 10 नीचे जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 4 इंटू 9 36 आ जाता है, 36 इज इक्वल टू योर्स X। तो ये आ जाएगा, ये X इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा, अब X अगर है ऐसे X है, इसमें से 0.9x को माइनस करोगे आप, तो ये 1 था अपने आप में 1.00 और ये 0.9, तो 0, ये 0 यहाँ से गया, ये कैरी में यहाँ 10 आएगा, यहाँ से 10 माइनस 1 1, तो 0.1, तो 0.1x, तो 0.1x इज इक्वल टू आपका 36 हो जाता है, ठीक है, 0.1x 36 हो गया। तो x कितना हो जाएगा, इधर देखो ऊपर की तरफ, x इज इक्वल टू 36 और नीचे आपका आ जाएगा 0.1। अब जब डेसिमल में पॉइंट आता है, अगर पॉइंट हटाते हैं तो 0 ऊपर जाएगा 10, तो 360, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 360, और जो कि Q के मार्क्स हैं। तो हाउ मच Q स्कोर 360, जो कि है आपका A, ठीक है, 54। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 70। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाओ। ओके, एन अमाउंट ऑफ मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC. Amount of money was distributed among A, B, C in the ratio P is to Q is to R. Okay, consider the following. A gets maximum share if P is greater than Q plus R. ठीक है, अगर जो P है वो बड़ा है Q plus R से, इसका मतलब जो अगर P जो है वो Q plus R से बड़ा है, तो इसका मतलब P सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो A का, तो A किसको मिला है, P को, A को क्या मिला है, P मिला है। तो और अगर P ग्रेटर देन है Q प्लस R से, मतलब इन दोनों क्वांटिटी को मिलाने के बाद भी P इससे बड़ा है, तो P सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो और A को क्या मिला है, P मिल रहा है, तो इसका मतलब A का शेयर सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। C गेट्स मिनिमम शेयर इफ R इज लेस देन P प्लस Q, R इज लेस देन P प्लस Q। अब ये कह नहीं सकते, क्योंकि समझ लीजिए अगर ये आपके पास R की वैल्यू 5 थी समझ लो, ठीक है, P इज इक्वल टू 2 था, ये Q इज इक्वल टू 4 था, तो अब 2 प्लस 4 करोगे तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 5 तो फिर भी 6 से बड़ा है, तो सबसे मिनिमम हुआ, सबसे मिनिमम तो P हो रहा है यहाँ पे, तो C फिर भी मिनिमम नहीं हो रहा, तो ये जरूरी नहीं है कि सही हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर सिर्फ A इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था जो कि बड़ा आसान था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 74। आप देख रहे हो कि इन वाले टॉपिक से क्वेश्चन कितने आसान है और कितनी जल्दी सॉल्व हो पा रहे हैं आपके पास।
Okay, a pie chart diagram shows the percentage distribution of protein, water and other dry elements in human body. Given that protein correspond to 16% and water correspond to 70%. ठीक है. If both protein and water and the other dry elements correspond to P%, then what is the central angle of the sector representing P in the pie diagram? ठीक है. अब देखो, अब पाई डायग्राम क्या होता है, एक सर्कल ही होता है अपने आप में. ठीक है, और पाई डायग्राम एक सर्कल है जिसका टोटल एंगल होता है 360 डिग्री. मैंने आपको पहले भी परसेंटेज वाले कंसेप्ट में बताया कि 360 डिग्री को आप 100% मान सकते हो. ठीक है, 360 डिग्री को आप 100% हमेशा मान सकते हो. तो अब इसमें दिए, अब इसमें टोटल 360 डिग्री 100% होगा. तो अब ये देखते हैं आगे, ये 100% तो पूरे पाए का हो गया. अब आगे देखो, 60% प्रोटीन है इसमें से. ठीक है, और ये जो P है ना, इसके अंदर ये P जो है ये कंस्टिट्यूट कर रहा है प्रोटीन को भी, जो कि 16 है, प्लस कुछ इसमें एक X अमाउंट है. ठीक है, जो ड्राई एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहा है. तो अगर मुझे ड्राई एलिमेंट्स का पता लग जाएगा तो मैं ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ से निकाल लूँगा. ठीक, isn't it? Are you getting my point? तो अभी इसके बारे में बात करते हैं हम. वैसे अगर आप एक चीज़ देखो, ये P% जो है ना, इसके अंदर तीन ही चीज़ें हैं वैसे, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन इसमें 70% वाटर 60% प्रोटीन है, और एक P% है जिसका मतलब जो है अपने आप में प्रोटीन प्लस अदर ड्राई एलिमेंट. तो अगर मैं सिर्फ यहाँ से 70 माइनस कर दूँ, ठीक है, और माइनस P कर दूँ, अगर मैं टोटल जैसे मेरा 100 है और 70 वाटर दिया हुआ है और उसके बाद है प्रोटीन और जो ड्राई एलिमेंट है, पर P% क्या है, प्रोटीन प्लस ड्राई दोनों है, तो इसमें प्रोटीन भी इंक्लूडेड है और ड्राई भी, तो मुझे प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और ये टोटल था, अगर इसमें से ये पूरा माइनस करोगे तो 0 आना चाहिए, क्योंकि ये बाकी बचा हुआ तो ये है ना 100 में से, तो ये आपका वो आ गया. तो आप इसको कर सकते हो कि 100 इज इक्वल टू, जो कि है, हो जाएगा आपके पास ये प्लस होएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस, माइनस नहीं प्लस. अगर आप वाटर में P ऐड कर दोगे तो ये टोटल बन जाएगा पूरा का पूरा जितना भी उस पाए में था, और वो टोटल पाए 100 है, तो 100 माइनस 70 इज इक्वल टू P, इजंट इट? तो P आपका 30 आ गया, 30% है. अब ये सेंट्रल एंगल की बात कर रहे हैं. अब मैंने आपको दिखाया कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 100% है आपका, तो 1% कितना हो गया, 360/100, तो ये 30% है. इंटू 30 कर दो आप इसको. ठीक है, इसको आप 30 कर दो, तो कितना आपके पास ये आंसर आ जाएगा. अब इसको चेक कर लीजिए, ये आपके पास आएगा 10, आपका 1 डिग्री, वो सॉरी 1% जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है. दोबारा एक बार चेक कर लो, दोबारा देखो इसे. आपके पास P जो था वो उसका ही एंगल निकालना है, कितना आना चाहिए. तो आपके पास 360 डिग्री जो है वो 100% के इक्वल है. ठीक है, तो 1% कितने के इक्वल आ जाएगा, 360/100, तो ये आपका कैंसिल हो गया. अब मेरे को 30% का निकालना है, तो 360 इंटू 30/100. ठीक है, सॉरी 100 नहीं, 10 या 10 था ना ये, तो क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया, तो 0 से 0, ये आपका 0 एंड 0 गेट कैंसिल आउट. तो दिस इज योर 36 इंटू 3, दैट इज योर 108. तो आपका आंसर आ गया C, 108 डिग्रीज. ओके, नाउ विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर आपका 78. ओके, क्वेश्चन 78. If the price of an article is decreased by 20%, then the new price is increased by 25%. Then what is the net change in the price? अब देखो, जब मैंने आपको कहा है कि हमें कुछ अगर पता नहीं है तो उसको 100% मान लो, क्योंकि 100% अपने आप में कंप्लीट होता है. और आपको एक चीज़ सिखाई थी, अभी दिखाते हैं उसको. जैसे कि मान लीजिए प्राइस पहले था 100% आपका, अब 20% डिक्रीज हो गया, तो -20%. तो 100 का 20% कितना होता है, 20, तो यह -20 आएगा, है ना. दिखा देते हैं, 100 इंटू 20/100 कट गया, 20 आ गया, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू योर 80. तो 100 का 20% 20 होता है. तो जो भी हम माइनस करेंगे ना या प्लस करेंगे तो नीचे लिखते जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, नीचे लिखते जाएंगे, वो परसेंटेज है, ऊपर परसेंटेज है, उसको मत मानना इसे. तो
100 का 20% कितना होगा 20। तो अब 100 में से क्या माइनस करना पड़ेगा नया प्राइस निकालने के लिए 20, तो 80 आ जाएगा। अब वो जो 80 आया उसको 25% से इंक्रीज कर दिया, तो जो 80 का 25% आएगा वो इसमें ऐड होगा। तो 80 का 25% निकालो 100 142, तो 80 का 25% वो यहाँ लिखो, ये +20 जो कि ऐड होता है आपका, इसमें ऐड होगा तो वापस से 100 बन गया। अब ये कह रहा है व्हाट इज द नेट चेंज इन प्राइस। अगर अब आपको नेट चेंज इन प्राइस निकालने के लिए फिर से वो फाइनल, वैसे तो अगर हमें नेट चेंज इन प्राइस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करते हैं। अगर आपको परसेंटेज में दिया आपको करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट किए थे ना टर्म्स, उन्हीं को ऐड कर दो। तो अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव आ जाए तो वो जो नेट चेंज है वो पॉजिटिव होगा, अगर आपके पास नेगेटिव आता है तो नेट चेंज नेगेटिव होगा, तो मतलब डिक्रीज हो गया। नेट चेंज नेगेटिव तो डिक्रीज, नेट चेंज पॉजिटिव तो इंक्रीज। यहाँ पे आप +20 -20 करो तो आपको क्या मिलेगा, +20 -20 0, तो नेट चेंज 0 है, तो आपका आंसर है 0 ए इसका आंसर। वैसे करके देख लो फाइनल क्या हुआ, फाइनल आया 100, ठीक है, इनिशियल 100 था और वैसे भी 100, तो 100 से तो 100 कैंसिल हो गया वैसे भी, तो ये आपका 0 था, 100 - 0, तो इसका आंसर 0 आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये आपका आंसर है 0/1 जो कि 0 होता है अपने आप में, गेटिंग, तो आपका आंसर है ए। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द 2021 क्वेश्चन पेपर्स PYQ एंड दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। बट आप देखोगे 7 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो जो कि बड़े आसान है, तो आपको कितना ज़्यादा फायदा हो जाता। अगर आपको नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम भी आ रही होती रियल पेपर के अंदर, तो अगर आप 7 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेते तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता। तो ये प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, मिक्सचर, रेशो, प्रोपोर्शन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आगे जाके वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी यूज़ होगा। वर्क एंड टाइम के 2 क्वेश्चन आते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस के भी 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये वहाँ पे भी आपको 4 क्वेश्चन में हेल्प कर रहा है। तो टोटल मिला के अगर आप इस टॉपिक को करते हो तो ऑन एन एवरेज आपके 10 क्वेश्चंस का फायदा मिलता है। 10 क्वेश्चन मतलब 25 मार्क्स। तो अगर आप इस टॉपिक को कर लेते हो तो आपको 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आप इजीली हैंडल कर सकते हो एग्जाम में जाके, क्योंकि बहुत इजी है। तो अगर आपको इसके कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस चैनल पे लेक्चर दिए गए हैं आधे घंटे के, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, मिक्सचर के, आप उसको चेक कर सकते हो। वहाँ से आपका कंसेप्ट बिल्कुल ब्रशअप हो जाएगा और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, वैसे ही क्वेश्चन हैं यूपीएससी में जिस टाइप के आते हैं, आपको खुद फील हो जाएगा करके। और फिर 2024-22 के PYQ के सोल्यूशन भी प्रेजेंट हैं वीडियो में, उनको भी चेक कर लो। तो अब कुल मिला के आप अपने आप में 30, 40, 50 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के कर लोगे। तो 30, 40, 50 क्वेश्चन एक टाइप के कर लोगे आप, तो वो आपके दिमाग में पूरा कंसेप्ट छप जाएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद हम 2020 का पेपर लेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, जिसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर द एग्जाम।